Today our topic is teaching vocabulary role play activities. We have learned yesterday that before lesson plan, brainstorming is must, and to enhance vocabulary, activities are compulsory. So role play activities are very important to enable wide range of activities to understand the topic, especially vocabulary in a proper way. We, the teachers, should teach our learners a lot of fixed expression to help them carry out these activities. For example, ordering a meal in a restaurant. Whenever we order a meal in any restaurant, we should use the language of English. Second language, apologizing from someone when we are doing any activity to say sorry, we should say in English. Asking for permission to go, to come, anything that may be in English. Now, superordinates and homonyms. For example, fruit is an subordinate, and an apple, an orange, a banana, and they are banana, apple, and other fruits like oranges are hyphonyms. इसका मतलब ये है कि अगर हम कहते हैं कि ये एक फल है तो ये सुपर ऑर्डिनेट है। इससे रिलेटेड जितने भी फलों की डिटेल होगी वो हाइफोनिम्स में आएगी। ये सारी की सारी जो है ये वोकेबलरी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट होती है, वोकेबलरी ऑफ सेकंड लैंग्वेज। Similarly, using real life process witnessed in real life, for example, recycling. हम कोई इवेंट एंजॉय कर रहे हैं, वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, वी आर गोइंग टू अटेंड अ मैरिज पार्टी, वी आर गोइंग टू अटेंड आर एनी रिलेटिव, then we use this recycling of our mind. We will select a topic, then we will have collocation. For example, hot, sun, tea, coffee, ladies and gentlemen, beautiful used for women, handsome used for men. We will recollect these things in mind. This all is collocation relevant to the topic. This is also helpful to enhance vocabulary. So far as the learning of second language acquisition is concerned, foreign language, teaching of English as a foreign language, translation method we have already studied. Kinesthetic and total physical response method, and having the gestures, the face expressions, the movement of hands, and body confidence level expressions all include in these techniques to teach vocabulary in a proper way. Definitely, there are some problems to teach vocabulary to the students. They are the main problem with vocabulary teaching is that only a few words and a small part of what is required to know a word can be dealt with at any one time. हम एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज़ को एनहेंस कर सकते हैं। This limitation, ये problem है, also applies to incidental learning from listening or reading. ज़ाहिरी बात है एक ही वक्त में हम अपने कान एक ही चीज़ को लिसन करने पे लगा सकते हैं और रीडिंग के वक्त हमारी आंखें भी एक ही चीज़ को रीड आउट करेगी, but it is much easier to arrange for large amounts of independent listening and reading than it is to arrange for large amounts of teaching.
कितनी मज़े की बात है। इसका मतलब ये है हमारे लिए ज़्यादा आसान है कि हम इस चीज़ का इंतज़ाम करें कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना वो हम इंडिपेंडेंटली ही लिसन करें और अपने ही तौर पे उनको रीड आउट करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को एनहेंस करें। इट मीन्स टू गेन वोकेबलरी वन पर्सन शुड डू द एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंटली एज वेल। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ टीचर ही पढ़ाए। Teaching can effectively deal with only a small amount of information about a word at a time. The more complex the information is, the more likely the learners are to misinterpret it. नेशन ने 2008 में ये बयान किया है कि जितना कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन हो जाती है इसी तरह लर्नर्स के लिए भी उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है. It's a travel from easy to difficult. If first of all we will say a difficult thing, then there will be problems to learn it. Vocabulary को learn करने के लिए easy से difficult की तरफ travel करेंगे. Secondly, there are more problems. According to Thornberry, it is hard for second language learners to acquire them meanings and the forms of the verb. थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब सीखना और उनके मीनिंग को लेके चलना ये भी मुश्किल हो जाता है. It is also difficult the meaning or similar words and also to use the words in the correct form when producing the language. ज़ाहिर बात है उसका यूज़ जो है सही फॉर्म में इस्तेमाल करना ग्रामेटिकल यूज़ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की वोकैबुलरी को एनहेंस करने में ये काफ़ी टफ है. What to teach as vocabulary is really important and this should be according to the learner's need. जितनी लर्नर की नीड है जो उसका एरिया वर्क है उसने जो सा एग्जाम देना है जो सा उसका करिकुलम और सिलेबस है उसको माइंड में रखते हुए हम वोकैबुलरी को डिज़ाइन करेंगे. Teachers should create a sense of need for students because this need should be internal. उसका लेवल देखा जाएगा उसकी एज देखी जाएगी then it will be played. However, the need of the learner and the teacher's participation may not be matched all the time, so this can create a conflict. एलन के मुताबिक एक conflict है कि उस्ताद जो पढ़ाना चाहता है बच्चे वो नहीं सीखना चाहते लेकिन उस्ताद जो देख रहा होता है कि जो उनका सिलेबस और करिकुलम है वो उसको उधर ही रखेगा. इंडिपेंडेंटली वो इधर उधर बहुत सारी चीज़ें गूगल पे सर्च कर लेंगे लेकिन उस्ताद को पता है कि मैंने अपने बच्चे के लेवल के मुताबिक उसकी एज के मुताबिक उसके सिनेरियो के मुताबिक उसके करिकुलम को जहन में रखते हुए उसके लिए क्या सिलेक्ट करना है. और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि जो चीज़ बच्चों को कही जाती है पढ़ो उन्होंने वो नहीं पढ़नी है और इसके इर्द गिर्द वो 24 आवर्स उनका नेट ऑन रहता है लेकिन जब टीचिंग होती है तो वो उसको टाइम नहीं दे पा सकते. एग्जाम्पल इज हेयर. I am opening with you. The participants are 6. या ऐसा है कि बाकियों के पास नेट नहीं है. तो द थिंग इज कि इंडिपेंडेंटली इंसान के अपने अंदर भी एक अर्ज होती है इल्म को हासिल करने की और वो हर एक में नहीं होती. टू प्रिवेंट दिस कन्फ्लिक्ट इस कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए अवॉइड टीचिंग वर्ड्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक जस्ट बिकॉज दे आर इटैलिसाइज्ड. हमें चाहिए कि जो वर्ड टेक्स्ट में लिख दिए गए हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक दफ़ा दोहराने के बाद या जो इटैलिसाइज्ड हैं उनको भी हम कन्फ्लिक्ट के तौर पे बच्चों को समझाएं ताकि उनके माइंड में इसकी क्लियरेंस हो. रिटन इन बोल्ड परमिट उनको प्रिंट में बोल्ड में हो जाना चाहिए. डोंट टीच द वर्ड्स जस्ट बिकॉज दे अपीयर इन अ लिस्ट एट द एंड ऑफ अ चैप्टर. एक एक लफ्ज़ को नहीं पढ़ाना वोकैबुलरी के तौर पे उसका सेंटेंस में यूज देना है फिल इन द ब्लैंक्स में देना है थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब्स में देना है कॉम्प्रिहेंशन में देना है. डोंट असाइन large quantities of words and the ones that learners will rarely encounter again. ऐसी ऐसी लंबी लिस्टें कि जिनको बच्चे पढ़ने से घबराएं वोकैबुलरी सिखाते हुए कभी भी ऐसा स्टेप नहीं लेना है. ये हम एक और एक्सरसाइज डोंट डू दिस और डू दिस में भी कर चुके हुए हैं जो हमारी फर्स्ट असाइनमेंट थी वोकैबुलरी पे. प्रॉब्लम और भी हैं. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ वोकैबुलरी टीचिंग? Thirdly, learners may not be ready for organizing the
words to store them in the long time memory. जाहिर है हम लफ्ज़ बोलते हैं, भूल जाते हैं, हमारी मेमोरी से स्किप हो जाते हैं। जब तक हम उनको फ्रेश नहीं रखते हमें वो याद नहीं रहते। टू अवॉइड दिस टीचर्स नीड टू गाइड द लर्नर्स टू बी सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। इसके लिए उस्ताद ही आपको सिस्टमेटिक वे में टेक्निक बताता है और ऑर्गेनाइज करता है। उसके लिए आपकी प्रेजेंटेशन ली जाती हैं, आपको बार बार रिवीजन के तौर पे रखा जाता है, आपके टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट्स तैयार होती हैं, इसमें वो बार बार जो हैं रिवीजन में आ जाते हैं। The activity or the techniques may not appeal to the learners all the time. For all the vocabulary items, so teachers need to use variable techniques or activities all the time. आकार 2010 में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं वोकेबलरी के लिए, उनको बार बार रिपीट टेक्निक होनी चाहिए। सपोज हम एक चार्ट बनाकर दीवार पे लगा लेते हैं, वो आते जाते हमारी नज़रों के सामने रहता है और हमारी बार बार उसमें रेपिटिशन होती जाती है। इसका सॉल्यूशन ये है कि हम वोकेबलरी को कैसे एनहेंस करें, इन प्रॉब्लम से कैसे जान छुड़ाएं, बच्चे के माइंड में लैंग्वेज 2 के वर्ड्स कैसे आएँ। At the very first level, you may say primary and nursery level, we say A for apple, A for ant. Yes, this is vocabulary list, जो कि बच्चों को सिर्फ हम रेपिटिशन के तौर पे करवाते हैं, वो भी हेल्पफुल होती है। लेकिन अगर हम एप्पल उनके साथ एक दिन एप्पल पार्टी, एप्पल मिल्क शेक शेयर कर लें तो वो ज़िंदगी भर इसको नहीं भूल पाएंगे कि एप्पल शेक होता है। अगर हम इसको ज़रा से बड़े लेवल पे ले जाएं कि एप्पल शेक में क्या क्या खूबियाँ होती हैं और उसका क्या कलर होता है, और एक हम पार्टी अरेंज कर लें कि जिसमें एप्पल शेक सर्व हो, तो बच्चे इसको सारी ज़िंदगी के लिए याद कर लेंगे। सो द थिंग इज़ कि हमने सोल्यूशन के लिए उसको रिपीट करना है बार बार। जब एक चीज़ बार बार रेपिटिशन में आएगी तो बच्चे उसको रिकॉल कर लेंगे। रेपिटिशन की चीज़ रिकॉलिंग में बहुत जल्दी आ जाती है। जैसे ही रेपिटिशन होती है और रिकॉलिंग होती है तो हम उस वर्ड को प्रैक्टिस में ले आते हैं। वो फिर वर्ड ओरल नहीं रहता बल्कि प्रैक्टिस इन हो जाता है। तो सबसे पहले बच्चे एक वर्ड को लिसन करते हैं। लिसन करने के साथ वो टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स मेथड के तहत body movements, lip movements, they are observing that. Then they try themselves to speak the same word as teacher is speaking. Yesterday the students asked, "Are you satisfied, ma'am, to teach us on the Zoom?" And yes, to some extent, because it's the time of need. हमें एक काम है वो हमने करना है क्योंकि ये सब की रिक्वायरमेंट है, लेकिन we are unable to see each other, our gestures, our body movements, our expressions, then we can use the video lecture. But at all, we have to write the lesson. We have to prepare our assignments. We have to enhance the words in a proper way. जैसे ही हम किसी वर्ड को वोकेबलरी के तौर पे राइट करते हैं, then our eyes, our mind, our hands, our knowledge is active. So it is a solution that so far as the vocabulary teaching is concerned, we should have the repetition of words again and again, and it's interlinked with the situations, with the context, with the help of fill in the blanks, with the help of storytelling application, with the help of any picture, then we may be able to enhance vocabulary in a proper way. Best of luck. Have a nice day.